اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف. اچھا خاور، آپ سے ایک اور جاننا چاہتے ہیں آپ، یہ ایک تو وہ ہے جو موجودہ معیشت کی صورتحال ہے، وہ بنیادی وجہ ہے اس تبدیلی کی. کچھ اور بھی تحریک انصاف کے اندر بھی معاملات ہیں، تقسیم ہے. ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے گورنر ہاؤس میں ایک جو پریس کانفرنس ہوئی، جہانگیر خان ترین کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اسد عمر بھی اس گروپ کے ساتھ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس کی حمایت کرتے ہیں، کہیں اس کا تعلق تو نہیں اس تبدیلی کے ساتھ؟ جی بالکل، ایک جو سیکشن ہے پارٹی کے اندر وہ واضح طور پر یہ بات کر رہا ہے، برملا وہ اس اندیا دے رہا ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے 10 دن سے جہانگیر خان ترین کا جو فٹ پرنٹس ہے جو پارٹی میٹنگز کے اندر اور حکومتی جو ڈیفرنٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے ہم ہی نے خبر اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ کی تھی کہ جہانگیر خان ترین کی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالہ میں. اس کی تصاویر بھی شائع کی گئی اور میٹنگ میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ وہ ملک کے اندر ایگریکلچر کے حوالے سے اور باقی جو معاشی ایجنڈا ہے. اچھا خبر، آج جو کچھ ہوا یا آج تک جو معاشی صورتحال ہے، تحریک انصاف کی حکومت کو 8 مہینے مکمل ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جو پچھلا ٹینیور تھا وہ اپوزیشن میں گزارا. آج کی تبدیلی کیا اس کے اثرات ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسد عمر کا اس عہدے سے ہٹایا جانا پاکستان تحریک انصاف کا وہ ماڈل جس کی بنیاد پہ ووٹ لیے گئے تھے اس کو دھچکا لگا ہے آج؟ جی دیکھیں جی، ایک تو اس پہ رائے یہ دی جا سکتی ہے کہ جس طرح ماضی کے اندر جو گزرا جو بھی کچھ کرتے تھے پرائم منسٹر ان کی منسٹریاں تبدیل نہیں کرتے تھے. اگر اس کو تھوڑا سا آپٹیمسٹک اس کا ہم اوور ویو لیں، اگر ایک منسٹر پرفارم نہیں کر رہا تو پرائم منسٹر کے پاس ایک اختیار ہے، اس کو چینج کر دیتے، جو کہ آن گراؤنڈ ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی تھی کہ جو ان کی کارکردگی کے حوالے سے کافی زیادہ شکوک و شبہات سوالیہ نشان تھے. تو اگر پرائم منسٹر صاحب نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے پرفارم نہیں کر رہی، آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار ہم نے اپنے پروگرامز میں خصوصاً میں یہ کہتا رہا کہ عمران خان غیر روایتی طریقے سے یہ اپنی حکومت چلائیں گے. اگر کوئی ان کا کھلاڑی پرفارم نہیں کرے گا چاہے وہ تو اس کی وزارت تبدیل کر دی جائے گی. بارہا ایسا کہا گیا خان صاحب کی جانب سے. خاور، آپ سے جاننا چاہیں گے، کچھ دنوں سے کابینہ میں ایمنسٹی اسکیم کا ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا، تو کیا ایک وجہ ایمنسٹی اسکیم بھی ہو سکتی ہے؟ اس کی بھی مخالفت کی گئی کابینہ میں. جی دیکھیں، کل جب کیبنٹ کی اسپیشل سٹنگ ہوئی کہ اس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے، تو وہاں پہ اسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ جی سب سے زیادہ اس کا جو نزلہ میرے اوپر گرے گا اس کی وجہ یہ کہ میں ماضی کی حکومتوں کی اس طرح کی اسکیموں کو ٹارگٹ کرتا رہا ہوں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اسکیم ملکی معاشی فائدے میں ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس چیز کو سامنے رکھ کے ہمیں آگے جانا ہے. تو اسی کے اوپر بحث ہو رہی تھی. تو خاور، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جو 8 ماہ میں وزارت خزانہ کی کارکردگی رہی، اسد عمر ہر تقریب میں بڑے پر امید دکھائی دیے اور لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے دکھائی دیے، تو ان کی جانب سے جو پالیسیز متعارف کروائی گئی تھی، جو اسکیمز متعارف کروائی گئی تھی، کیا اس کا اثر پڑے گا ان پر؟ دیکھیں جی، اگین یہ کولیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے موجودہ حکومت کی. یس، جو اسد عمر کے حوالے سے چونکہ وہ پارٹی کے پوسٹر بوائے کنسیڈر کیا جاتے تھے، عمران خان کے سب سے اہم ترین کھلاڑی کنسیڈر کیے جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں 100 سالہ تقریب ہوئی، وہاں پہ جب اوپننگ سپیچ میں اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ پچ بڑی اس کے اوپر گرین ٹاپ ہے، موسم بڑا خراب ہے اور عمران خان صاحب نے مجھے اوپننگ کے لیے بھجوایا ہے اور میں ایز اے اوپننگ بیٹسمین میں کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالات کو مینج کر رہا ہوں. میرے خیال میں وہ نک ہو گیا ہے، کیچ پکڑ گیا ہے. ابھی ظاہر بات ہے عمران خان صاحب نے اب نیا کھلاڑی ان پلیس. اچھا گومن صاحب، جو کپتان کا اوپننگ کھلاڑی تھا وہ تو انجرڈ ہو گیا، زخمی ہو گیا، جو بھی کہیے وہ تو اب گراؤنڈ سے باہر جا رہا ہے. تبدیلیوں کا آغاز پنجاب سے ہوا جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی مکمل طور پہ تبدیل کی گئی. اس کے بعد آج وفاقی وزیر خزانہ کی تبدیلی کی اطلاعات ہیں. کہیں ایسا تو نہیں یہ تبدیلی کی ہوائیں سینٹر سے لاہور پہنچیں گی؟ ضرور پہنچیں گی. دیکھیں، اس ملک کے 12 کروڑ عوام جو ہے وہ پنجاب کے اندر رہ رہے ہیں اور پنجاب میں ہمیں بالکل جو گورننس نام کی کوئی چیز ہمیں موجودہ حالات میں نظر نہیں آ رہی اور کافی زیادہ سوالات ہیں پنجاب کے اندر. ایک جو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک تبدیلی کا عمل انہوں نے کہا تھا، وہ کوئی بھی وہاں پہ چیز ہے نہیں ہے. لہٰذا اگر وفاق کے اندر اسد عمر جیسا بااعتماد کھلاڑی اپنی پوزیشن کھو سکتا ہے تو میرے اچھا خاور، لاہور تو دور پڑتا ہے، اسلام آباد سے خیبر پختونخوا کافی قریب ہے، تو کیا تبدیلی کی ہوا پہلے وہاں جا سکتی ہے؟ کوئی امکانات ہیں؟ جی بالکل ضرور جا سکتی ہے. آج کے فیصلے کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو تمام لوگ یہ کہتے تھے نا کہ عمران خان فیصلہ سازی کے عمل میں
وہ بالکل اب وہ روایتی سیاستدان کے طور پر وہ بہیو کر رہا ہے. وہ میرے خیال میں وہ تمام جو مت توڑ دیا ہے, وہ پرسپشن جو بلڈ ہو ری تھی کہ اب عمران خان بھی روایتی سیاستدانوں کی طرح پرائم منسٹر کی طرح بس پرائم منسٹر آفس میں پہنچ گیا تو اب اسی طرح وہ گھسیٹتا رہے گا حکومت. وہ ہرگز نہیں گھسیٹے گا, وہ جو بھی اس کو تبدیلی کرنا پڑے گی کرے گی. ٹھیک ہے خاور, آپ سے تو آپ کا تبصرہ بھی لیں گے, تفصیلات بھی جانیں گے. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مریم صاحبہ, پہلی تبدیلی آ گئی ہے. ایک تو وہ تبدیلی آئی جو تحریک انصاف کی حکومت خود لے کے آئی, اس کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے اندر تبدیلی کی ہے. آج وزارت خزانہ کا قلمدان تبدیل کیا جا رہا ہے. بطور ترجمان نون لیگ کیا کہیں گی آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے 3 دن پہلے یہ کہا تھا کہ اسد عمر صاحب اپنی نوکری سے فارغ ہو گئے ہیں. جس قسم کی دہشت گردی اور معاشی دہشت گردی اس ملک کے اندر, اور جس طرح غریب ان کی نالائکی کی وجہ سے مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب نے ایک دفعہ پھر جھوٹ بولا اور کہا نہیں اور ڈینائل کیا. تو جو جس حکومت کا انفارمیشن منسٹر جس نے انفارمیشن دینی ہے وہ جھوٹ بولے تو وہ آج آپ کے سامنے آ گیا. لیکن ایک اور بات میں کہوں گی کہ آج عمران خان صاحب کا استعفیٰ آنا چاہیے تھا. یہ اسد عمر صاحب کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. جب وزیر اعظم نالائق اور نااہل ہو, اور جب وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ معاشی بحران جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے آیا ہے, تو آج پھر اسد عمر سے کیوں استعفیٰ لیا ہے؟ یہ آج کا استعفیٰ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نالائق ہیں, ہم نااہل ہیں اور ہمارے بس کی بات نہیں. اچھا مریم صاحبہ, جیسا کہ آپ نے کہا کہ 3 روز پہلے ہی آپ نے بتا دیا تھا, اس کے بعد میڈیا پہ خبریں گردش کی, تردید کا سلسلہ شروع ہوا اور آج بالآخر اسد عمر کا یہ ٹویٹ سامنے آیا جس نے سب کچھ واضح کر دیا. کیا پنجاب میں بھی آپ کو ایسی ہی کسی تبدیلی کی کوئی امید دکھائی دے رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کا 22 کروڑ عوام کا مذاق نہیں ہے, اور جس طرح آج ایک آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی ہے, اور یہ جس قسم کے یہاں مذاق کرتے ہیں, جس قسم کے یہاں یہ الزامات, اور میں نے 3 دن پہلے یہ بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ کوئی کارروائی ہونے والی ہے, اور یہ جو ڈاکو چور کے نعرے جب شروع ہوتے ہیں اور تیز ہوتے ہیں اس کے پیچھے ان کی ایک نالائکی چھپی ہوتی ہے. اور آج آپ دیکھیں IMF کی رپورٹ آئی ہے جو میڈم آپ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کی جو ترقی اور معاشی حالات ہیں وہ اس ملک کے اس خطے کے لیے خطرہ بن رہے ہیں, بوجھ بن رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ 9 مہینے پہلے IMF ہی کی رپورٹ تھی اور ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ جنوری یقیناً وہ رپورٹ جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ہی ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. مریم صاحبہ, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپوزیشن پارٹی کی ترجمان ہیں. عمران خان ایک بڑا فیصلہ بہرحال کیا ہے کہ ایک ایسا وزیر ان کے خیال میں جو کارکردگی نہیں دکھا رہا اس کو ہٹایا جا رہا ہے. آپ ترجمان کے طور پہ نون لیگ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہیں؟ دیکھیں, میں پہلے میری ایک لائن کمپلیٹ کرنے میں جو میں بات کر رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ 9 مہینے میں وہی ادارے وہی رپورٹس منفی جو تاثر ہے وہ دے رہے ہیں پاکستان کی ترقی کے بارے میں. 2018 میں یہی ادارے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 2019 جنوری میں پاکستان کی ترقی کی اشارہ 6% ہو جائے گی. اور یہ بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اصل میں یہ بڑا فیصلہ ان کے بڑے فیصلے والا ہونا چاہیے تھا, اور ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا اور گھر چلے جانا چاہیے تھا. یہ ان کے بس کی بات ہے. یعنی آپ کے خیال میں کہ گورنمنٹ کو استعفیٰ دینا چاہیے, پوری کی پوری گورنمنٹ چلی جائے؟ جی بالکل, عمران خان صاحب اس کو لیڈ کریں. اور آج کی جو یہ بات ہے اسد عمر صاحب کی, 9 مہینے ملک کا بیڑا غرق کر کے معاشی صورتحال آپ دیکھیں, لوگوں کی مشکلات دیکھیں, گیس اور بجلی کے بل دیکھیں, 80% گیس اور مہنگی, ابھی IMF کے ساتھ نیگوشیشن نہیں ہوئی, وہ لٹک رہی ہے بیچ میں کیونکہ اتنے نالائق لوگوں کے ساتھ وہ ادارے کبھی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی معاشی جو قسمت ہے وہ ان نالائقوں کے اچھا مریم صاحبہ, اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کرنے کی بات کی گئی تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ اسحاق ڈار کو لے آیا جائے. کیا اب ایسی کوئی تجویز آپ دیں گے قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ تنقید کرنے والے اسحاق ڈار اور مصطفیٰ اسماعیل اسحاق ڈار پہ خاص طور پہ, اور اسحاق ڈار کے دور حکومت ہے تو ملک کی شرح 5.8 تھی اور مہنگائی کی شرح 3% تھی, اور جس قسم کی پولیٹیکل اور اکنامک مینجمنٹ تھی اس وقت اس دور میں, اس کی تعریف پوری دنیا نے کی. تو اسد عمر صاحب ان نالائق, وہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ان نالائقوں کے ٹولے کا حصہ نہیں بن سکتے. لیکن مریم صاحبہ, ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہوا نا کہ پرائم منسٹر اپنی ٹیم میں سے کسی ایسے کھلاڑی کے متعلق سمجھتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کو ہٹا دیا گیا. یہ بھی تو ایک اچھی مثال ہے اس پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر, مستقبل کے لیے ایک اچھا ایک مثال, ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں اچھی مثال ہے. آپ کل عمران خان صاحب کی تقریر سنیں, انہوں نے شروعات ہی اسد عمر صاحب کی تعریف سے کی تھی
खुदारा आप ये इस तरह की बातें ना करें। और असद उमर साहब के जाने का मसला नहीं है, असल में नालायक वजीर आजम साहब हैं, उनको पता ही नहीं मुल्की गवर्नेंस क्या होती है, मुल्क चलते कैसे। उनको सिर्फ एक चीज में ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, दूसरों पे इल्जाम लगाना, दूसरों को चोर कहना, दूसरों को डाकू कहना। लेकिन मरियम साहब, उनका जो बुनियादी आर्गूमेंट है वो यही है कि आपकी हुकूमत ने जाते हुए इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू किए जो गैर जरूरी थे, आपकी हुकूमत ने इतने कर्जे लिए, हम तो जितना पैसा बाहर से ले रहे हैं वो कर्जों के ऊपर लुटा रहे हैं। उनका तो ये एक बुनियादी आर्गूमेंट है जो सामने रखते हैं वो तो है। उसकी आज खुद ही उन्होंने तरदीद की जो असद उमर साहब का इस्तीफा। और हाँ जी, हमने लिए कर्जे तो हमने 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, हमने लिए कर्जे तो हमने 1100 किलोमीटर की मोटरवे बनाई, हमने लिए कर्जे तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, दहशतगर्दी खत्म की, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। पूरी दुनिया कर्जे लेती है। इन नालायकों की वजह से 100 अरब, हम अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कर्जों को अलग कर दें, इन नालायकों की वजह से 100 अरब यौमिया पाकिस्तान का कर्जा। तो मरियम साहिबा, आपके ख्याल में 8 माह की हुकूमत से ये उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं कि वो आते ही इतनी तरक्की की हवा लेकर आ जाएं साथ? जी, तरक्की की हवा नहीं जी होती। हम भी 2013 में आए थे तो उस वक्त जो तरक्की की शरह थी वो 2.8 पे थी और महंगाई डबल डिजिट थी। हम लोगों ने मुल्क के अंदर एक ऐसी एनवायरनमेंट दी, एक ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करके माशी इस्तेकाम देता है। पहले वजीर आजम जब अपने मुल्क को चोर कहता है तो इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट होता है उसको शटर करता है। एक ऐसा बुरहान मुल्क में आता है जब आपकी जबान पे आपको काबू नहीं होता। तो यही सूरत हाल होती है जिसमें आज की मौजूदा हुकूमत और वजीर आजम खुद मुब्तला हैं। अच्छा मरियम साहब, आपने कहा कि आपने 3 दिन पहले कह दिया था कि असद उमर साहब जो है उनकी नौकरी जा रही है। आप तो कई और वजीर हैं उनके मुतालिक भी कहती हैं कि उनकी नौकरी भी खतरे में है, तो क्या खबर है आपके पास, कोई और वजीर भी जा रहा है? देखिए, फवाद चौधरी साहब इस वक्त किराए के तर्जुमान और किराए के वजीर। देखिए, मसला पहले क्या है, मसला ये कि इस जो टीम है नालायक वजीर आजम की, वो उनकी अपनी नहीं है। आप देखिए, दाएं बाएं मुशर्रफ की टीम बैठी है। फवाद चौधरी साहब कौन थे? आप 2 साल पहले फवाद चौधरी साहब का धरने के दौरान अगर निकाल लें इंटरव्यू, प्लीज निकालें मेरे बीपर के बाद, तो वो जरदारी साहब की हमायत और उनकी पूरी ट्रांसपेरेंसी और उनकी जो तमाम वो चीजें थी उनकी हमायत कर रहे थे। आज वही चीज जरदारी साहब को गाली दे रहे हैं। तो ये जो सराय के लोग होते हैं, आपके ख्याल में कुछ और भी लोग हैं जिनकी नौकरियां खतरे में हैं? मरियम औरंगजेब साहब अपना रद्दमल दे रही थी, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मौशियात हैं, उनसे जानते हैं। मुजम्मिल साहब, जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी के ऊपर पॉलिसी थी उसमें हमें क्लैरिटी तो दिखाई नहीं दे रही थी। तकरीबन 8 महीने लग गए ये डिसाइड करने में कि हमें IMF के पास जाना है या नहीं जाना। अब इसको देर से कहें, जल्दबाजी में कहें, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने एक फैसला ले लिया है। आप क्या समझते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बैठा हुआ जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल होगा? हमें महसूस होगा कि गवर्नमेंट इसमें संजीदा है इकोनॉमी को बेहतर करने में? देखिए, बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर जो है ना वो बड़ा इन्फॉर्म्ड होता है और वो जो है मार्केट को जो है जो आने वाले दिनों को जो है आज जो है ना डिस्काउंट कर रहा होता है। तो स्टॉक मार्केट मैं समझता हूँ कि सिर्फ उससे अच्छे के लिए गैर यकीनी मुजम्मिल असलम साहब जो हैं वो अपना तबसरा दे रहे हैं। जी, आपको सुनना कहिएगा। जी हाँ, स्टॉक मार्केट सिर्फ उस वक्त तक गैर यकीनी सूरत हाल में रहेगी जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आएगी, अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है जल्द अज जल्द जो है कोई ऐलान आ जाना चाहिए, अगर वजीर आजम खुद रख रहे हैं और कोई। अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, कल एक तकरीब से खिताब किया वजीर आजम इमरान खान ने और बड़े पुरुमीद दिखाई दिए। उनका कहना था कि सरमायाकार आना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में सरमायाकारी पाकिस्तान में आना चाह रही है। तो आपको लगता है कि इस डिसीजन के बाद, ऐसे वक्त में जब IMF से हमारा मुआहदा तय होने वाला था, तो सरमायाकार का एतमाद बहाल होगा, उसको ठेस पहुंचेगी? क्या सोच रहा होगा सरमायाकार? देखिए, सरमायाकार जो है ना पूरी दुनिया में रीशफलिंग होती है, जापान में भी 11 महीने में हुकूमत खत्म होती रहती है। तो सरमायाकार ये नहीं देखता, सरमायाकार देखता पॉलिसी डायरेक्शन क्या है। और पॉलिसी डायरेक्शन हुकूमत में तब्दील हुई है, इसके वजीर खजाना एक गए हैं। तो वो मेरा अपना ख्याल ये कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो पॉलिसी है वो उसको जो है आने वाले जो है वो उसको ही फॉलो करें। यानी आपके ख्याल से वो उसी लाइन को फॉलो करेंगे जो नए भी आएंगे। आप हमारे साथ रहेगा, सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो सियासी मंजरनामा है उस पर क्या असरात हो सकते हैं और वो उस हवाले से बात करते हैं। हबीब साहब, कहिएगा, तब्दीली आ गई, यानी कि असद उमर साहब को हटाया जा रहा है, किसी और को ये कलमदान सौंप दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर इस वक्त मुखालिफिन तनकीद तो कर रहे थे, क्या समझते हैं अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद दबाव का शिकार हो जाएगी या बेहतर तौर पे जवाब दे पाएगी कि हमने देखे अपना वजीर भी हटा दिया, हम तो क्लियर हैं, हम तो काम करना चाहते हैं?
देखिए, मेरा ख्याल ये है कि असद उमर को अपने ओहदे से हटाकर ये एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है इमरान खान साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज ये साबित कर दिया है कि दरअसल असद उमर का ये सारा कसूर था। ये इससे एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हो गई है कि ये जितनी भी इकोनॉमी खराब हुई थी ये असद उमर ने की थी, तो लिहाजा मैंने इसे मेरिट पे हटा दिया है। और इमरान खान साहब बार बार कहते भी रहे हैं, इस बात पे इशार भी करते रहे हैं कि अगर उनका कोई वजीर काम नहीं करेगा तो उनकी टीम का हिस्सा नहीं होगा। रिसेंटली उन्होंने पंजाब में एक मीटिंग की, तो उसके बाद आपने देखा कि पंजाब में भी बड़े पैमाने पर सरकारी अफसरों की तब्दीलियां की गई और फिर उस्मान बुज़दार साहब को भी उन्होंने मजबूत किया। इसी तरह असद उमर साहब को भी अब जो इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम आ रहा था, पंजाब का भी प्रॉब्लम पॉलिटिकल इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना इकोनॉमी का था, तो इकोनॉमी के प्रॉब्लम को उन्होंने इमीडिएटली उसका सारे का सारा बैगेज जो है वो असद उमर के सर पर डाल के उन्हें अपनी टीम से निकाल दिया है। तो लिहाजा एक पॉलिटिकल प्राइस तो उन्होंने पे कर लिया है। हबीब अकरम साहब, इस फैसले की टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा वजीर तब्दील हो रहा है खजाना का, तो टाइमिंग कितनी मैटर कर रही है? देखिए, हमारा जो IMF के साथ जो हमारी डीलिंग होती है, इस तरह वर्ल्ड बैंक के साथ होती है, तो उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ज्यादा एक तयशुदा पॉलिसियां होती हैं जिनका अमल दखल होता है। और उसके साथ साथ हमारी जो वजारत में बैठे हुए अफसर हैं, उनके जो मुख्तलिफ डेस्क है, उनके जो सरबराहान है, दरअसल वो सारी की सारी डील तय कर रहे होते हैं। तो उसमें वजीर का वो तो वजारत के जो अफसरान हैं वो तय करेंगे। हबीब साहब, आपसे ये इस मामले पे जानना चाहेंगे कि एक पोस्टर बॉय थे, एक ऐसा नाम था जिसकी बुनियाद के ऊपर कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब कहते थे कि ये होगा मेरा वजीर खजाना जो तारीख बदल देगा। अब ये जो फैसला हुआ है, आप क्या समझते हैं, जल्दबाजी में फैसला कर लिया गया है? यानी 8 महीने में अगर असद उमर को हटाया जा सकता है तो बाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालात तो हैं, लेकिन उसका जवाब ये आता है कि अभी तो हमें 8 महीने हुए हैं, तो हम 30 सालों का गंद कैसे साफ कर लें? देखिए, इकोनॉमी के मामले में ऐसा था कि बाकी जगह ये आर्गुमेंट काबिल कबूल था, लेकिन इकोनॉमी का मामला ऐसा था जिसमें पिन पॉइंट किया जा रहा था और हर वक्त किया जा रहा था। यानी ये बताया जा रहा था कि आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है। बाकी चीजों के मामले में ये आर्गुमेंट किसी हद तक काबिल कबूल था, क्योंकि इकोनॉमी फोर फ्रंट पे थी और पूरे के पूरे पाकिस्तान को मुतासर कर रही थी। आपके सारे के सारे जो नंबर्स थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, तो लिहाजा इन नंबर्स को चलिए आप उठा नहीं सकते थे पिछले साल के मुकाबले में, तो आप कम से कम मेंटेन रखने की कोशिश करते, या आपने जितनी भी पॉलिसियां बनाई थी उन्हें किसी तरीके से आप पहले ये इतना वक्त देते कि वो अब्जॉर्ब हो जाती। आप देखिए कि इन हमारे जो असद उमर साहब हैं, इनकी वजारत खजाना के दौर में रुपए की कीमत में एक दिन में 9 रुपए, यानी डॉलर की जो वैल्यू थी वो एक दिन में 9 रुपए बढ़ गई। तो अब इसका मतलब ये था कि इस मुल्क में ना वजारत खजाना काम कर रही है, ना स्टेट बैंक काम कर रहा है, ना किसी को कुछ पता है कि क्या हो रहा है। हत्ता के वजीर आजम को ये कहना पड़ा कि मेरे इल्म में लाए बगैर ये चेंज लाई गई है। तो जब आपकी इकोनॉमिक टीम में कोई कोहिजन ना हो, उनके अंदर यकसुई और यकजहती ना हो, तो ऑब्वियसली आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात इसमें हमें ये हबीब अकरम साहब, आपकी नज़र में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ऐसी एक रिवायत कायम करना, मिसाल कायम करना कि जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा, डिलीवर नहीं करेगा, वो घर जाएगा, कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए? मेरा ख्याल यह है कि तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकती ये काम लेके। उसकी वजह यह है कि इसकी पार्टी, अदरवाइज पार्टी के अंदर फ्रैक्चर जो है वो नुमाया होना शुरू हो जाएंगे, पार्टी के अंदर टूट फूट होना शुरू हो जाएगी। एक वजीर को जब आप उसके ओहदे से हटाते हैं तो हर आदमी असद उमर नहीं होता कि जो आराम से बैठ जाएगा, उसके बाद फिर बहुत सारे दीगर प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो PTI है वो बहुत ज्यादा लेजरली ये काम नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता कि अक्रॉस द बोर्ड सारे वज़रा को बैक वक्त आप थ्रेटन उन्हें महसूस करवाना शुरू कर दें कि अब उनका जो ओहदा है वो खतरे में है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं देखिए, हमारी जो इकोनॉमी भी है उसमें आप सारी जिम्मेदारी इस उम्र पे नहीं डाल सकते। इकोनॉमी की जिम्मेदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी लेनी पड़ेगी। अच्छा हबीब साहब, इससे कता कलामी के लिए माफी चाहते हुए आपसे इससे एक रेलिवेंट सवाल चाहेंगे, जो आप बात करें इसको आप मुकम्मल कर लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वजारतों के दरमियान भी एक मिस कोऑर्डिनेशन है, या तहरीक इंसाफ की जो काबीना है उसके अंदर भी एक तकसीम है, वो वजह बनी मजमूई कारकर्दगी के ऊपर, और वो मजमूई कारकर्दगी ना दिखाने की बुनियाद के ऊपर असद उमर की वजारत चली गई? देखिए, ये एक पहलू जरूर हो सकता है, लेकिन जो वजीर खजाना होता है, दरअसल आप उसे, अगर वजीर आजम बाप होता है तो वजारत खजाना दरअसल माँ होती है पूरी की पूरी हुकूमत की।
तो वजारत खजाना ने पॉलिसी का तयन क्या करना है, मुल्क को किस तरफ लेके जाना है, ये वजीर आजम को मशवरा भी देना होता है, वजीर आजम की अप्रूवल के साथ पूरे मुल्क को उस पॉलिसी की तरफ निगोशिएट करना होता है। तो लिहाजा ये मामला के वजीर आपको क्या असद उमर ने कोई इमेजिनेटिव आइडियाज दिए वजीर आजम को? अनफॉर्चुनेटली इनका जवाब है नहीं। आपके क्या असद उमर ने कोई नए टैक्सेशन एवेन्यू तलाश किए? इसका जवाब है नहीं। असद उमर ने क्या कोई इकोनॉमी का एक खास सेक्टर ऐसा था जिसको तेज कर दिया, यानी एक पॉलिसी डिसीजन के तहत? इसका जवाब है नहीं। तो जब इन सारे सवालात के जवाब नहीं में होंगे तो यकीनी तौर पर आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको आपको तब्दील करना पड़ेगा। अच्छा हबीब अकरम साहब, उमूमन जब ऐसे फैसले किए जाते हैं तो सबसे पहले जहन में कोई ना कोई मुतबादिल होता है। अभी खावर घुमन जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने 3 नाम ब्रेक किए हैं, शौकत तरीन साहब, हफीज़ पाशा साहब और डॉक्टर इशरत का नाम भी लिया जा रहा है मुतबादिल के तौर पर। तो इनमें से आप किसको सराहेंगे? क्या ये नाम बेहतर है? देखिए, अगर आप इमरान खान का इकोनॉमिक विजन अगर उनका कोई है और उसको कोई समझने वाले लोग हैं तो मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट ऑप्शन तो असद उमर ही थे, क्योंकि असद उमर ने उनके साथ क्लोजली काम किया है। लेकिन इस वक्त जो आपका जिस अंदाज से हमारी इकोनॉमी है, तो इसके लिए जिस विजन की जरूरत है वो मेरा ख्याल है कि किसी यानी जो 3 नाम आए उनसे ज्यादा मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर सलमान शाह का नाम भी बाज लोग दे रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह ने इस मुल्क में कम से कम एक इकोनॉमिक विजन पैदा करने की कोशिश की थी। उन्होंने मईशत को एक स्तंभ देने की कोशिश की थी। ये उनका आइडिया था कि आप पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक अर्बन सेंटर्स बनाएं। ये उनका आइडिया था कि आप लोकल मार्केट्स को डेवलप करें। ये उनका आइडिया था कि आप एनर्जी को पूरे का पूरा एनर्जी सेक्टर को ओवरहॉल करें, और उसका नतीजे बड़े अच्छे निकल रहे थे। उन्हें क्योंकि अपने उस वक्त के वजीर आजम जो थे शौकत अजीज, उनका पूरा एतमाद हासिल था, तो उन्होंने लिहाजा वो बहुत सारी इस्लाहात, तो इस्लाहात का ये सिलसिला रुक चुका हुआ है। तो अगर आपको बिलीव है कि वो इस्लाहात दुरुस्त थी तो मेरा ख्याल है कि फिर डॉक्टर सलमान शाह एक बेहतर ऑप्शन होगा। अबीब साहब, जो इस्लाहात की बात कर रहे हैं, वजीर आजम साहब ने डॉक्टर इशरत हुसैन को भी तो एक जिम्मेदारी दी हुई थी, इससे पहले भी उनको वो पसंद करते हैं। आप नहीं समझते कि डॉक्टर इशरत हुसैन भी एक अच्छा नाम है इस पोस्ट के लिए? देखिए, डॉक्टर इशरत हुसैन बहुत अच्छा नाम है, लेकिन वो इकोनॉमी के फील्ड में जो एकेडमिक साइड है इकोनॉमी की उसको बहुत अच्छा समझते हैं कि इकोनॉमी के ऑब्जर्वर वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या खुद वो किसी मुल्क के वजीर खजाना हो तो और इकोनॉमी को चला सकेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही दे सकता है। मेरे लिए ये कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर हम माजी में देख चुके हैं कि डॉक्टर महबूब हक का तजुर्बा भी यहाँ पर पाकिस्तान में हुआ था। वो जो कहा जाता है कि वो बहुत तेजी से उन्होंने काम करने की कोशिश की और लिहाजा वो काम नहीं कर सके। इसी तरह डॉक्टर इशरत हुसैन, क्या इनके पास इस्लाहात का कोई ऐसा नुक्ता नजर है जिसको लेके आगे बढ़ेंगे? हम माजी में देख चुके हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर रहे और उसके बाद जब इन्हें ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, एक कमीशन इनकी सरबराही में मुकर्रर किया गया, तो वो आज तक कोई भी तब्दीली नहीं ला। अच्छा अबीब साहब, एक और तजर्बाकार नाम है और इस वक्त वो काबीना में मौजूद भी हैं, उमर अयूब साहब। वो इससे पहले काम भी कर चुके हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उमर अयूब साहब जो काम कर रहे थे वो डॉक्टर सलमान शाह साहब की निगरानी में और शौकत अजीज की निगरानी में काम कर रहे थे, और असद उमर साहब जो है, माफ कीजिएगा, उमर अयूब साहब अगर बरह रास्त ये मामला चलाएंगे तो मेरा ख्याल ये है कि उमर अयूब साहब को बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। अच्छा हबीब अकरम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने अपना जो पॉइंट रेस किया है, उनका कहना है कि असद उमर को हटाने के मस्बत नताइज होंगे। उम्मीद है कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले बाकी वजीरों को भी हटाया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हुकूमत को अब एहसास हुआ कि उनकी मुआशी पॉलिसियां गलत हैं। उम्मीद है असद उमर को हटाने से मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी। तो जो कलअदम तंजीमों को लेकर जिक्र किया जा रहा था बिलावल भुट्टो की जानिब से, उस मामले को उन्होंने हाईलाइट किया है और उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले बाकी वजीरों को भी हटाया जाएगा। हबीब अकरम साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो उनका एक पॉलिटिकल रिएक्शन है और पॉलिटिकली वो बाकी वज़रात के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं, और इसी तरह के इल्जाम सिर्फ पीटीआई पे नहीं बल्कि आपको याद होगा वो पीएमएलएन के वज़रा पर भी इस तरह के इल्जाम लगाते रहे हैं। ये उनका एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, तो लिहाजा वो दूसरे जब तक मतलब ये यकीनी बात है कि असद उमर साहब को हटाना ये खालिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है। अगर पीपल्स पार्टी इसका कोई क्रेडिट लेना चाहे तो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं होगा। और इसी तरह अपनी काबीना को रीशफल करने का हक और इख्तियार ये वज़ीर आज़म इमरान खान को हासिल है, ना कि आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी को। तो वो
पॉलिटिकली तो जाहिर है इस पे पॉइंट स्कोर करना चाहेंगे, लेकिन ये पॉइंट वो स्कोर कर नहीं पाएंगे। अच्छा हबीब साहब, आपसे मैं एक और चीज़ ये जानना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो तकरीबन 1.25 महीने के बाद ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे में वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिया जाएगा, बजट की तैयारी इस वक्त जारी है, एक नया वज़ीर ख़जाना आएगा, वो फिर यही कहेगा कि मेरे पास यही मसाइल थे क्योंकि मैंने ये बड़ा लेट इस पोस्ट को मेरे पास आई जिसको मैंने संभाला। आप नहीं समझते कि 1 महीना और इंतज़ार किया जा सकता था या इससे पहले फैसला ले लिया जाता? आने वाले बजट पे क्या असरात हो सकते हैं? जो पॉलिसी मेकिंग का मसला इस वक्त आ रहा है उस पे ये कुछ इफेक्टिव होगा? देखिए, मेरा ख्याल यह है कि हमें मसला ही पॉलिसी का था। यानी असद उमर जो थे वो बैलेंस शीट तो ठीक कर रहे थे, मिसाल के तौर पे उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया था, बाहर से आने वाले पैसों को उन्होंने अगर से बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बाहर उससे हमारी जो बैलेंस शीट थी वो तो बेहतर हुई थी। लेकिन क्या इकोनॉमी को कोई पॉलिसी दे पाए या नहीं दे पाए? मेरा ख्याल है कि ये वो इसका जवाब है नहीं। तो आपको इकोनॉमी की बैलेंस शीट तो आपका मसला है ही है, आपने फिस्कल साइड को भी मैनेज करना है, एक्सटर्नल साइड को भी मैनेज करना है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी को जंप स्टार्ट भी देना है। वो जंप स्टार्ट कहाँ से आएगा? हमारी इकोनॉमी का हमेशा से मसला सप्लाई साइड रही है, यानी हमारी इंडस्ट्री छोटी है, इंडस्ट्रियल बेस बहुत कम है, हमारी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रही, हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर डेप्थ बहुत कम है। तो क्या इन सारी चीजों को सप्लाई साइड के मसाइल को हल कोई कर सकता है? मेरा ख्याल है कि इसके लिए आपको एक तजुर्बाकार आदमी चाहिए जो पहले भी किसी इकोनॉमी टीम का हिस्सा रहा हो। मिसाल के तौर पर हबीब अकरम साहब, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की टीम में ऐसा कोई तजुर्बाकार बंदा है? अनफॉर्चुनेटली जो अगर तो इसकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करनी है तो फिर तो ऐसा कोई आदमी आपके जहन में नहीं आता, लेकिन अगर आपने किसी टेक्नोक्रेट को ये मौका देना है कि वो आए और अपना काम करे और फिर उसको पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट देनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। उसमें हबीब पाशा भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसमें शौकत तरीन साहब बहुत अच्छी ऑप्शन है। शौकत तरीन साहब इसलिए भी अच्छी ऑप्शन, ज्यादा पॉलिटिकली काबिल कबूल हो सकते हैं कि वो जहांगीर तरीन साहब से उनका ताल्लुक है, और जहांगीर तरीन साहब उनके जरिए जहांगीर तरीन साहब की जो पॉलिटिकल अहमियत और हैसियत है, मेरा ख्याल है कि आइंदा वजीर खजाना को उनका एतमाद। अच्छा हबीब अकरम साहब, तहरीक इंसाफ की पार्टी में धड़ेबंदी की खबरें भी सामने आई। पिछले दिनों हमने देखा 2 वज़रा आमने सामने आए, उनके हामियों ने उनका जिक्र किया, दूसरों को हामियों ने उनकी हिमायत की। तो अब जो फैसले होंगे पार्टी में, क्या इमरान खान आज़ादाना तौर पर फैसले कर सकेंगे या धड़ेबंदी का नतीजा होंगे ये फैसले? देखिए, सियासी तौर पे तो असद उमर का जाना बहुत बड़ी फतह है जहांगीर खान तरीन के लिए, यानी जहांगीर खान तरीन के ग्रुप की। और देखिए, जहांगीर खान तरीन बहरहाल आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो नए आइडियाज थे मौशी मैदान में, मिसाल के तौर पे आजकल आप ये देखिए कि जो 56 कंपनियों का हम जिक्र करते हैं कि 56 कंपनियां और जो पंजाब गवर्नमेंट ने साथ